Yes, good morning, children. How are you all? So today we are going to start chapter number 8. The name of this chapter is A Genie Whom No One Liked. So today we will discuss the dictation word meaning, and question answer of this lesson. So before starting the question answer, I summarize this chapter. Okay, the name of this chapter is A Genie whom no one liked. A genie है जिसको कोई भी पसंद नहीं करता. So इसमें who is genie? Student, a genie is a character and who fulfill all the wishes of his Aka. Yes, who is Aka? Aka is the owner of the particular chirag, particular lamp. Okay. So now the student in the story we read about the genie that whom no one liked, and genie always unhappy. Why the genie always become unhappy? Because nobody want this genie, because genie was in not in order and had a bad things and a bad dirty things in their chirag. So uh, after that long a boy named Pankaj who found the lamp, and he heard the sad cries of the genie. So he decided to take or become his friend. और बाद में क्या बन गया था? पंकज उसका friend बन गया था. And after that, when the Pankaj entered in the genie lamp, that the genie felt ashamed and apologized that the genie जो was very important, that after that you have your base is very dirty. So Pankaj remembered his mother advice. Pankaj को बाद में क्या उसकी mother की advice याद आई, and he told the genie that it was very important to keep all the things in order. So they decided to give the place a good clean. Okay, or after so many days, the genie become very respectful once again, and people were very happy from this genie. So now what we learned this chapter? We learned that nothing great can be achieved without order and cleanliness in all things. मतलब क्या है कि जो भी चीजें होती है, सभी चीजों को व्यवस्थित रूप से रखे बिना या सफाई किए बिना हम कुछ भी बड़ा हासिल नहीं कर सकते. So this is the main motto of this chapter. Okay, student, have you understood? So now I'm starting a dictation notes. First is here famous, Famous, famous. Second is here silly, Silly, silly. Third one is here granted, Granted, granted. Number fourth is here untidy, not clean, Untidy, untidy. Number fifth is jewelry, Jewelry, jewelry. Number six is here surprised, Surprised, Number seven is here ashamed, Ashamed, ashamed means शर्मिंदा होना. Number eight is here apologize, Apologize. Apologize means क्या होता है? To be sorry. Okay, माफी मांगना. Number nine is here remembered, Remembert. Number 10 is here gleaming, Gleaming. Number 11 is here advice, advice. Number 12 cleanliness, Clean Cleanliness, cleanliness. Okay, so this is our dictation word, and after that we start word meaning. So number one is here genie. Genie means spirit with magic power. एक spirit एक जो आत्मा होती है, किसके साथ क्या होती है? उसमें magic powers होती हैं. स्पॉइल, टू मैश अप, मतलब कुछ भी स्पॉइल का मतलब क्या करना? खराब करना, किसी भी चीज को बिगाड़ना. टू मैश अप. अनटाइडी, which means not clean. Number fourth is here apologize. Apologize means to say sorry for doing something wrong. Okay. Number fifth is here gleaming. What is the means of gleaming? Means shining brightly. Okay. Number six is here achieve, which means succeed in doing something. मतलब कोई भी चीज हमको कुछ करते हुए हमको उसमें क्या लेना? सफलता लेना, जिसको हम क्या बोलते हैं? achieve. Okay. Now this is our word meanings. After that we have to start our activity one of this book.
Yes, first is here. Rearrange the following sentences and put them in correct order according to the story. हमारे सामने कुछ sentences दिए गए हैं. हमको क्या करना है, इस story के according उन जो sentence हैं उनको story के according हमको right order में लिखने हैं. Okay, हमको क्या करना है, उनका order correct करना है. So first I am repeating. One day, a lonely boy named Pankaj found the magic lamp and rubbed it. Okay, it was clear that the genie's house has not been cleaned for years. Third is here, Pankaj wished to enter the magic lamp as he wanted to see what the genie's house looked like. Okay, number fourth is here, whenever somebody rubbed the magic lamp, the genie would come out and say, "What is your wish?" Number fifth, together Pankaj and Genie put everything in order. Now the genie was respected. Number six is here. Pankaj told the genie that it was important to keep things in order. So now the student, you have to arrange all these sentences. The first sentence is here. We put the first number. Whenever somebody dropped the magic lamp, the genie would come out and say, "What is your wish?" Okay. जब कभी कोई भी मैजिक लैम्प को रब करता तो जीनी उनसे क्या करता, बाहर जीनी बाहर आता और कहता तुम्हारी विश क्या है. एंड आफ्टर दैट वी हैव टू राइट द next sentence. One day, a lonely boy named Pankaj found the magic lamp and rubbed it. एक दिन एक जो lonely अकेला जो लड़का पंकज ने magic lamp को found किया और उसको rub किया. And after that, third is here. Pankaj wished. पंकज के उसके बाद पंकज ने क्या करी थी, wish करी थी to enter the magic lamp as he wanted to see what the genie's house looked like. उसकी इच्छा थी magic lamp में enter होने की और वो देखना चाहता था. क्या देखना चाहता था कि जो जिनी का जो हाउस है किसकी तरह दिखता है. यहाँ पे हाउस किसकी बात कर रहे हैं, जिनी हाउस, एज वी टॉक अबाउट हिज चिराग, हिज लैम्प. ओके, यस. आफ्टर दैट नंबर फोर्थ इज हियर. when the Pankaj entered his Ginny house, at that he see that it was clear that Ginny house has not been cleaned for years. इसको पता चल गया था कि बहुत सालों से जिनी का हाउस क्लीन नहीं हुआ था. एंड आफ्टर दैट you have to write number fifth sentence. Pankaj told the genie. Pankaj ने उसको क्या बोला, that it was important to keep things in order. पंकज ने उसको बोला था कि कोई भी जो भी चीजें हैं उसको क्या रखना चाहिए, अपन को व्यवस्थित रखनी चाहिए. ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है. After that, number six sentence. Together Pankaj and Ginny put everything in order. जब पंकज ने जिनी को बोला कि आपको सारी चीजें, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि सारी चीजें आपको ऑर्डर में रखनी चाहिए, तो उसमें क्या होता, उसके बाद क्या किया था, पंकज ने और जिनी ने पुट एवरीथिंग इन ऑर्डर, सारी चीजें उनको ऑर्डर में रख दी. एंड नाउ जिनी वाज रिस्पेक्टेड. और अब जिनी की क्या होने लग गया, सम्मान होने लग गया था. सो नाउ द स्टूडेंट, दीज आर द सेंटेंसेस यू हैव टू राइट इन order. Okay, students. So now we have done this activity. After that, we'll move on the question answer of this chapter. Question number 1 is here. What happens when someone rubs a magic lamp? क्या घटित होता है जब कोई मैजिक लैम्प को क्या करता है, रब करता है. ओके. When someone rubs a magic lamp, genie comes out and asks, "What is your wish?" जब कोई भी magic lamp को rub करता है तो उसके अंदर से genie बाहर आता है और उससे पूछता है कि तुम्हारी wish क्या है. Okay? Second is here, what does the genie do? Genie क्या करता है? Genie, what is the main reason of genie? Genie का क्या काम है? Okay, the genie fulfills the asked wish. जिन्नी का काम क्या है, वो जो भी उसे विश पूछता है, जो भी उसे विश मांगते हैं, उसको वो क्या करता है, फुलफिल करता है. नंबर थर्ड इज हियर. व्हाई डू यू थिंक पंकज आस्क्ड द जिनी टू लेट हिम एंटर द लैम्प? व्हाई डू यू थिंक मतलब तुम क्या सोचते हो कि पंकज ने जिनी को कहा कि उसको लैम्प के अंदर एंटर होने दे. वी थिंक, हम सोचते हैं that पंकज wanted to see what the genie's problem was. पंकज ये जानना चाहता था कि जिनी की प्रॉब्लम क्या है ना. नंबर फोर्थ इज हियर. Why did the genie feel ashamed? Genie क्यों शर्मिंदा महसूस करता था? The genie felt ashamed because his place was untidy and full of
डस्ट। जिनी हमेशा शर्मिंदा महसूस इसलिए करता था कि उसका जो प्लेस है, जो उसका जो लैंप है, वॉज अनटाइडी, मतलब क्या था, बहुत ही गंदा था, क्लीन नहीं था, एंड फुल ऑफ डस्ट, और किससे भरा हुआ था, मिट्टी से भरा हुआ था। सो दैट्स व्हाई द जीनी फेल्ट ashamed. Okay, number 5th is here. What advice did the Pankaj mother give? Pankaj mother ने उनको क्या advice दी थी पंकज को? Pankaj mother advised that it was important to keep all the things in order. पंकज की मदर ने एक एडवाइस दी थी कि जो भी ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमको जो भी चीजें हैं, सभी चीजों को क्या रखना है, एक ऑर्डर में रखना चाहिए। एज ऑर्डर मीन्स कहते हैं एट इट शुड बी, मतलब जैसे जहाँ पे प्रॉपर प्लेस है वहां पे उन चीजों को हमको रखना चाहिए। ओके, नंबर 6 is here. Why did people begin to respect the genie again? वापिस से लोग जीनी की रेस्पेक्ट क्यों करने लगे थे? The people began to respect the genie again because it started to give the gifts to the people with cleanliness. Yes, this is the answer. वापिस से लोग जीनी की रेस्पेक्ट इसलिए करने लगे थे क्योंकि जो स्टार्ट किया था उसने, जो जीनी ने जो गिफ्ट देना स्टार्ट किया था लोगों को, वो किसके साथ था, मतलब क्लीनलीनेस, मतलब वो गिफ्ट क्या थे, बिल्कुल साफ सुथरे थे। पहले जब बात करते थे, जब जीनी को गिफ्ट देता था तो क्या था, गिफ्ट के साथ साथ बहुत सारा क्लाउड ऑफ स्मोक केम आउट फ्रॉम दिस लैम्प, है ना, और वो जो भी गिफ्ट था वो किया होता था फुल ऑफ कवर ऑफ स्मोक, वो किससे भरा हुआ था, फुल ऑफ डस्ट स्मोक से भरा हुआ होता था। इसीलिए क्या होता था, लोग उसकी रिस्पेक्ट करना छोड़ते थे, लेकिन वापिस से इनकी रिस्पेक्ट किसने करी थी, क्योंकि अब वो जो भी गिफ्ट थे वो क्या थे, उसके साथ। ओके, नाउ वी हैव completed the question answer. Now we move on the activity second. Here the activity is complete the following crossword puzzles with the help of clues given below. Now the student, यहाँ पर आपको crossword दे रखे हैं, अब उसमें आपको क्या करना है, उसके according आपको जो words है वो इसके अंदर आपको fill करने हैं। तो first one is there shining brightly, which means shining brightly को हम क्या बोलेंगे, gleaming. Okay, now you have filled the gleaming here. Second is here एन एनिमल्स, लेकिन इसका नंबर 5th है, एन एनिमल फाउंड इन डेजर्ट। कौन सा एनिमल है जो फाउंड होता है डेजर्ट में, यू हैव फिल्ड इज हियर कैमल। ओके, नाउ 6th इज हियर अ सेट ऑफ पेजेस पुट टुगेदर टू बी रीड। अब आपको ये बताना है कि सेट ऑफ पेजेस होते हैं जो कुछ साथ में होते हैं रीड करने के लिए। यस, आंसर इज हियर बुक। ओके, सो नाउ वी डू दी एक्सरसाइज फ्रॉम दी डाउन। अब हमको क्या करना है, आपको एक जो पजल है आपको क्या करनी है, अब आपको ऊपर से नीचे आपको फिल करनी है। फर्स्ट इज हियर स्प्लिट विद मैजिक पावर, आई टोल्ड यू बिफोर, yes it is a genie is a spirit of magic power. Now number second is suggestion का दूसरा मतलब क्या होता है, एडवाइस, सलाह देना। ओके, नंबर थर्ड इज हियर एन ऑब्जेक्ट दैट प्रोवाइड्स लाइट, ऑब्जेक्ट होता है जो आपको लाइट प्रोवाइड करता है। यस, हियर इज अ लैम्प, LAMP, लैम्प। Fourth is here foolish. What is the means of foolish? We also say that silly, SILLY. So now the student, we have completed the crossword puzzle with the help of clues. Okay, so now we move on the next exercise. Yes, fill in the blanks using appropriate words from the box. यहाँ आपके सामने एक help box दे रखे हैं and the words are given in the help box as a gleaming, apologize, drop, untidy and advice. I hope you have to know this meaning. Okay. So now number 1 is here. The teacher used a duster to dash the blackboard. Teacher duster use करती है, किसके लिए use करती है, तो रब भी, जो ब्लैक बोर्ड पे जो लिखा होता है उसको रब करने के लिए क्या करती है टीचर, डस्टर यूज करती है। सेकंड इज हियर ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ इज अ गुड एडवाइस, एक अच्छी, हमेशा सत्य बोलना एक अच्छी सलाह है। नंबर थर्ड इज हियर सुनील कीप्स हिज थिंग्स इन प्रॉपर प्लेस, सुनील अपनी जो थिंग्स रहती है, जो वस्तुएं होती है वो एक प्रॉपर प्लेस पे रखता है। हिज रूम नेवर लुक्स अनटाइडी, उसका रूम कभी भी अनटाइडी नहीं लगता, मतलब गंदा नहीं लगता।
Number fourth is here, Mahesh does not chew गुटखा. महेश कभी भी गुटखा नहीं खाता है. He has gleaming white teeth. उसके दांत हमेशा कैसे रहते हैं? Gleaming मतलब चमकते रहते हैं, ऐसे white teeth. Okay. Number fifth is here, Neeraj apologized for his rude behavior. नीरज ने अपना जो उसका जो गंदा जो rude behavior था, जो bad behavior था, उसके लिए उसने क्या करा? Apologize मतलब उसने उसके लिए माफी मांगी. So now this children, we have completed this exercise. After that we start the activity third. Yes, listen to me student carefully, because this activity is related to a tense. Okay, read the following sentences from the lesson. First is here, Pankaj found the lamp. You notice the found. And second, he heard the sad crisis of the genie. Now student, these sentences are the example of simple present tense. ये जो भी example दिए गए हैं, किसके example है? Simple सॉरी पास्ट टेंस के एग्जांपल है. आपको पता है पास्ट टेंस क्या होता है? इट इज यूज्ड, सो द पास्ट टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट टुक प्लेस इन द पास्ट. जो समय बीत गया है, अगर जो एक्शन जो पास्ट में हुआ है उसकी अगर हम बात करेंगे तो जो एक्शन पास्ट में हो गया उसको हम क्या बोलेंगे? पास्ट टेंस. जैसे हमारे जो टेंस होते हैं उसको हम क्या तीन तरह के होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट टेंस जो अभी हमारा प्रेजेंट जो हमारा कंटिन्यूस चल रहा है, पास्ट जो हमारा बीत गया जिसको हम भूतकाल बोलते हैं, फ्यूचर टेंस भविष्य काल जो आने वाला है. सो नोटिस दैट पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब find and hear have been used in this sentences. तो आपको ये पता होगा कि जो भी past tense, when we use the past tense we use a second form of the verb. तो क्या करते हैं इसमें? second form use करते हैं. As in the first sentence we use the second form of the find. Find की second form क्या है? Found. Hear की second form क्या है? Heard. Okay student? पास्ट टेंस जब भी हमारा जो पास्ट टेंस आता है, पास्ट टेंस का मेनली भूतकाल का मतलब क्या है? अब जो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अभी रिसेंटली एग्जांपल देती हूँ. आपकी ईवीएस की क्लास है ना, आपकी ईवीएस की ऑनलाइन क्लास हो चुकी है, तो ये कौन सा टेंस हो गया? मतलब पास्ट टेंस, मतलब हो गई है, आपकी ईवीएस की क्लास कंप्लीटेड हो गई है, हो गई. तो वो कौन सा टेंस में आ गया? आपके पास्ट टेंस में. ओके, आपने अपना काम कर लिया, यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, परफेक्ट टेंस. लेकिन आई एट आइसक्रीम, मैंने आइसक्रीम खा ली है, मतलब खा ली मतलब पास्ट हो गया, वो बीत गया. तो ये क्या है? एग्जांपल किसके है? पास्ट के. ईट की सेकंड फॉर्म क्या यूज करी मैंने? एट यूज करी. सो नाउ fill in the blanks using past form of the verbs given in the brackets. Let's start. First is here, Nitesh dashed to Jaipur yesterday. So here you see that the first form go is here. So we use a second form from the sentence. Why we use second form? तो आपको आइडेंटिफिकेशन क्या हो रहा है? yesterday. हम किसकी बात कर रहे हैं? कल की बात कर रहे हैं, तो हम इसकी गो की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? सेकंड फॉर्म यूज करेंगे. नितेश went to Jaipur yesterday. नितेश कल जयपुर गया था. ओके, सो इसलिए हमने गो की कौन सी फॉर्म यूज करी? सेकंड फॉर्म यूज करी. ओके, Raju wrote dash a letter to his father. Right. So here the right है, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो यू यूज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. राजू wrote. द सेकंड फॉर्म क्या है? राजू ने अपने पिताजी को एक पत्र लिखा. किसकी बात कर रहे हैं? पास्ट. ओके, now third one is here, Kavita dash her homework before going to bed. Now first form is here complete, so we use the second form of the verb completed. Kavita completed her homework before going to bed. कविता ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया, मतलब बेड पे जाने से पहले उसने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया. ओके, नंबर फोर्थ इज हियर, मंजीत डैश अ ब्यूटीफुल पेपर बोट. तो फर्स्ट फॉर्म इज हियर मेक, वी विल यूज द सेकंड फॉर्म. मंजीत मेड अ ब्यूटीफुल पेपर बोट. मंजीत ने एक ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर पेपर बोट बनाई मतलब किसकी बात हुई? पास्ट की, मतलब उसने बना ली है ना. नंबर फिफ्थ इज हियर, द टीचर डैश पूनम व्हाई शी वाज एब्सेंट द प्रीवियस डे. वी नोटिस द प्रीवियस डे, सो वी यूज द सेकंड फॉर्म आस्क्ड. द टीचर आस्क्ड पूनम, जब टीचर ने पूनम से पूछा था क्यों कल क्यों एब्सेंट हुई थी. ओके, सो वी यूज अ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो नाउ द स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि वेयर वी यूज द सेकंड फॉर्म.
we use the second form in the past tense। अब आपको बताया था मैंने, जब हम कॉम्प्रिहेंशन पैसेज करते हैं, जब हमारे जो क्वेश्चंस के हम आंसर लिखते हैं, अगर क्वेश्चन के अंदर डिड लिखा होता है तो आंसर के अंदर हम वर्ब की क्या करते हैं, सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, है ना। नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्टिविटी। Now this is for you student. Draw a picture of genie and the magic lamp on a chart paper and write a paragraph on it describing what the genie does। ये एक्टिविटी आपके लिए है। आपको क्या करना है, एक जीनी की पिक्चर ड्राइंग करनी है और मैजिक लैम्प होना चाहिए, मतलब मैजिक लैम्प उसके साथ साथ मैजिक लैम्प होना चाहिए, और आपको एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें आपको what the genie does, कि जीनी क्या करता है। Okay student, this is activity for you। Okay, so now the student, we have completed this chapter। Okay, if you have any query you can ask me। Comprehension passage number 1। One day a lonely boy named Pankaj found the lamp। एक दिन एक जो lonely लड़का था पंकज, उसने एक लैंप पाया। He heard the sad cries of genie। उसने क्या किसी आवाज सुनी, सैड क्राइसिस ऑफ जिनी की बहुत ही रोती हुई दुखी आवाज सुनी। सो ही डिसाइडेड टू ट्राई टू बिकम हिज फ्रेंड। तो उसने उसको अपना दोस्त बनाने का निश्चय किया। द विश ही आस्क्ड टू बी ग्रांटेड वाज टू बी एबल टू एंटर एंड लीव द लैम्प। उसकी विश क्या थी कि उसने उससे पूछा था कि क्या वो उसको लैम्प के अंदर आने और जाने के लिए वो ग्रांटेड मतलब स्वीकृति दे सकता है। जिनी वाज हैप्पी टू ग्रांट हिज विश। जिनी ने उसकी विश ग्रांट करते तो इससे क्या होगा, जिनी बहुत ही खुश हो गया। एज सून एज पंकज एंटर द लैम्प, जैसे ही पंकज लैम्प में एंटर हुआ, ही कुड सी व्हाट द जिनीज प्रॉब्लम। तो उसने देखा कि जिनी की प्रॉब्लम क्या थी। It wasn't that he was a bad genie, it was just that he was untidy। ये नहीं था कि ये bad genie है, लेकिन क्या था, वो बहुत ही क्या था, वहाँ पे जो उसका जो प्लेस था, उसका जो लैम्प था, क्या था, बहुत ही untidy था। So now I'm starting the question answer related this paragraph। तो द पैसेज इज अबाउट, ये पैसेज किसके बारे में है, पंकज के बारे में, लैम्प के बारे में, जीनी इन डेंजर के बारे में, या अनटाइडी नेचर ऑफ जीनी। यस, दिस पैसेज इज अबाउट द अनटाइडी नेचर ऑफ जीनी, क्योंकि जीनी क्या का नेचर क्या था, वो बहुत ही गंदे तरीके से रहता था। Now, second question is here. What did Pankaj found one day? Pankaj found the magic lamp one day. Pankaj ने क्या पाया एक दिन? Magic lamp. Next question is here. What did Pankaj hear? Pankaj heard the sad cries of Genie। Now notice the student, when in the question you notice that did के साथ verb की first form आई है here। So when you write answer, जब आप आंसर लिखेंगे तब आप उसकी verb की क्या यूज करेंगे, second form यूज करेंगे। So the Pankaj heard the sad cries of genie। Now question number 4, find out the opposite of enemy from this passage। आपको enemy का क्या लिखना है, opposite लिखना है। yes बताइए, enemy का opposite क्या हो जाएगा? yes student, friend। okay, now I'm starting the next paragraph। The genie felt ashamed and apologized। He said that a genie job was very important and he had no time for cleaning। जीनी क्या होता, बहुत ही शर्मिंदा हुआ था, है ना, बहुत ही अपोलोजाइज मतलब फील सॉरी, मतलब माफी मांग रहा था। क्या ही सेड, उसने कहा कि जीनी की जॉब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड ही हैड नो टाइम, उसके पास टाइम ही नहीं होता किसके लिए, फॉर क्लीनिंग, साफ सफाई के लिए। बट पंकज रिमेम्बर्ड हिज मदर एडवाइस। पंकज को, लेकिन पंकज को अपनी मदर की एडवाइस पता थी। ही टोल्ड द जीनी दैट, उसने जीनी को बोला दैट इट वाज इंपॉर्टेंट टू कीप ऑल द थिंग्स इन ऑर्डर। उसने कहा, उसकी मदर की एडवाइस क्या थी, उसने जीनी को बोला कि सारी चीजों को ऑर्डर में रखना ही सबसे महत्वपूर्ण काम है। सो दे डिसाइडेड टू गिव द प्लेस अ गुड क्लीन। सो उसने जो उसका प्लेस था उसको क्या कर दिया, बिल्कुल साफ सुथरा करने का निश्चय किया। The question from this passage, question number 1, the passage is about, पैसेज किसके बारे में। now the student, आपको ये ध्यान में रखना है कि अपन को ऑल ओवर चैप्टर में से आंसर नहीं देने हैं। हमारे सामने जो भी पैसेज की जो 8 to 10 लाइन है, हमको आंसर उसमें से ही देने। कई बार स्टूडेंट्स क्या होते हैं, आंसर है ना चैप्टर में से देने लग जाते हैं, ये रॉन्ग है। आपको जब भी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, सीन पैसेज आएगा आपका, तब आपको आंसर जो पैसेज के अंदर जो लाइन्स है उसमें से आपको आंसर देने हैं। ओके, तो फर्स्ट इज हियर, पैसेज किसके बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, क्लीनलीनेस, गुड अरेंजमेंट या गुड एडवाइस। द आंसर इज हियर क्लीनलीनेस। ओके, now next is here, how did Genie feel? Genie क्या feel करता है, Genie felt ashamed। okay,
Question third is here. Why could Ginny not do cleaning? Ginny could not do cleaning because he had no time. Yes, in this passage, Ginny told he has no time for cleaning. Okay. क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज हियर व्हाट डिड पंकज टेल जिनी पंकज ने जिनी को क्या कहा था पंकज टोल्ड जिनी यस यू नोटिस आपने नोटिस किया डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म टेल यूज करिए तो अब जब हम आंसर लिखेंगे तो हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे सेकंड फॉर्म यूज करेंगे ओके पंकज टोल्ड जिनी टू कीप हिज थिंग्स इन ऑर्डर ओके क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट डिड पंकज रिमेंबर पंकज को क्या याद था Pankaj remembered. Notice the second form of the verb remembered. Pankaj remembered his mother's advice to keep all things in proper order. कि हमको सारी चीजें किसमें रखनी चाहिए एक proper order में रखनी चाहिए. So now this is all about the comprehension passage. Okay student, I hope you have understood the two passages of this chapter.